Hello student, good morning to everyone and once again welcome to class 12th accountancy. Today we will start with a new chapter dissolution of a partnership firm. Partnership firm आपको पता है in class 12th आपके जो chapters आते हैं we have started from fundamental, then change in profit sharing ratio as well as admission of a partner, retirement, death, and now we are going to close our firm book of the firm dissolution of a partnership firm. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बट इसका मीन क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, according to section 39 of the Partnership Act 1932, the dissolution of a partnership firm between all the partners of a firm is called dissolution of a partnership firm. It is called dissolution of a partnership firm between all the partners. It will lead to the breaking of relationship between all the partners. बेटा याद रखना, all the partners of the firm, एडमिशंस में, रिटायरमेंट में या डेथ में किन्हीं एक या दो पार्टनर्स के बीच का डिसोल्यूशन हो रहा था. पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन था, पार्टनरशिप फर्म का नहीं था. बट सारे पार्टनरशिप के आपस के रिलेशन जब एंड हो जाएंगे, इट इज़ नोन एज दी breaking of relationship between all the partners, known as the dissolution of a partnership firm. This brings to an end to existence of the firm and no business is transacted after dissolution except the activities related to closing of the firm. क्लोजिंग ऑफ द फर्म से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको छोड़कर और कोई भी एक्टिविटीज़ आपकी कैरी ऑन नहीं होंगी. सारे रिलेशन पार्टनर्स के बीच के आपस में ख़त्म हो जाएंगे, फर्म क्लोज हो जाएगी, फर्म का वर्क क्लोज हो जाएंगे, अकाउंट क्लोज हो जाएंगे. सो अगेन इम्पॉर्टेंट लाइन क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, dissolution of the partnership between all the partners of a firm is called dissolution of the partnership firm. नेक्स्ट, dissolution of a partnership. तो बेटा ये dissolution of a partnership क्या होता है? dissolution of is the act of officially ending an agreement between two partners. बेटा समझ में आता है कि जब आप एडमिशन हो रहा था तो dissolution of a partnership हो रहा था, जब रिटायरमेंट था तब भी dissolution of a partnership था, डेथ में भी, और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर. दोनों में फ़र्क है, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. तो एक बार वापस से हम क्लियर करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप. Dissolution is the act of officially ending an agreement between two partners in partnership. Also, if the partners wish to break their partnership deed, they can put an end to the business. If the other partners wish to continue the business, they can continue it with new agreement. यानी कि पार्टनरशिप, dissolution of a partnership में था, if the partners they want to disclose, they can disclose, they want to continue, they can continue. The dissolution of partnership may take place in any of the following case: change in existing profit sharing ratio, admission, retirement, death, insolvent of the partners, or completion of the ventures if partnership is formed to that. या फिर आप बोल सकते हो amalgamation of a partnership firm. एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की जो पीरियड टाइम था वो एक्सपायरी हो गया. तो इन ऑल द फॉलोइंग केसेस इन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप विल टेक प्लेस. लेकिन बेटा दोनों में फ़र्क है, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप. डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में बेटा क्या होता है, फर्म ही बंद हो जाएगी. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनरशिप क्लोज होती है, एक नई पार्टनरशिप का एक एग्रीमेंट, एक नया एग्रीमेंट जन्म लेता है. लेकिन अगर फर्म बंद हो जाएगी तो आपके सारे एग्रीमेंट टूट जाएंगे, कोई भी पार्टनर्स के सारे रिलेशन है आपस में, जो प्रोफेशनल रिलेशन है वो सारे के सारे क्लोज हो जाएंगे. तो डिफरेंट वे ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप. डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर्स का होता कब है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर्स? तो बेटा देखिए इसके दो मेथड है, मैंने आपको भी जस्ट बताया था. ये जो पार्टनरशिप का जो एक है जो एंड होगा वो किस तरीके से होगा,
तो आप यहाँ पर देखिए इस तरीके से डिफरेंट वे ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। तो अलग अलग वेज कौन है पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन के। तो देखिए बेटा, जो पार्टनरशिप का जो डिसोल्यूशन है वो कब को, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, फर्म इज डिसॉल्व। ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ पार्टनरशिप की नहीं, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म की अगर हम बात करें तो फर्म का एग्रीमेंट कोर्ट के मेथड है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट एंड कंपल्सरी डिसोल्यूशन with the consent of all the partners and accordance with contract between the partners। तो फर्म जो डिसॉल्व हो सकती है, अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कि डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट हो रहा है और उन्होंने फर्म को डिसॉल्व कर लिया। कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो रहा है, कुछ ऐसे काम हुए हों कि कंपल्सरी कोई पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गया हो, बिजनेस में कुछ जो मिसहैपनिंग हो गई हो या कुछ अनलॉफुल काम किया गया हो, उस वजह से भी कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो सकता है। डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसी हो सकता है। डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। तो अलग अलग मेथड हो सकते हैं फर्म के डिसोल्यूशन होने के। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, अ फर्म इज डिसॉल्व विद द कंसल्ट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अगर एग्रीमेंट से होता है तो क्या हो सकता है बेटा, फर्म अलग अलग वेज हैं, तो विद एन एग्रीमेंट, अगर आपस में एग्रीमेंट होता है तो पार्टनर्स हैं, जो भी एग्रीमेंट था वो एंड की तरफ आ चुका है तो फर्म अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। सपोज कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है कि सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, अब सड़क का काम पूरा हो जाएगा तो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी, एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया। एग्रीमेंट था एक ब्रिज बनाने का, ब्रिज बन गया है, जो आपका जब ब्रिज बनने के बाद क्या हो जाएगा, कमिटमेंट कंप्लीट हो जाएगा, एग्रीमेंट कंप्लीट है, अपने आप ही डिसोल्यूशन हो जाएगा। अ फर्म इज डिसॉल्व कंपल्सरी इन द फॉलोइंग केसेस। कंपल्सरी कब हो सकता है, व्हेन ऑल द पार्टनर्स, ध्यान से पढ़ना, व्हेन ऑल द पार्टनर्स और ऑल बट वन ऑफ द पार्टनर्स, क्योंकि एक पार्टनर सबके बिहाफ पर काम करता है और सारे पार्टनर्स बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पर काम करते हैं, बिकम इंसॉल्वेंट रेंडरिंग देम इन कंपटीशन टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वो इंसॉल्वेंट हो गए, या तो सारे के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाएं, या फिर क्या हो सकता है कि उनमें से कोई एक हो जाए और जो साइनिंग अथॉरिटीज़ भी उससे ख़त्म हो जाए, तो उस केस में भी क्या होता है कि कंपल्सरी डिसोल्यूशन होगा। और by the happening of any event which make it unlawful, in that also case there will be dissolution of a partnership firm when the business of the firm become illegal, when some event has take place which make it unlawful for the partners to carry on the business to the firm in partnership। कुछ अनलॉफुल काम कर लेते हैं और उसके बाद उनको बिजनेस कैरी ऑन करना मुश्किल हो जाएगा, तो उस केस में भी फर्म का डिसोल्यूशन होगा। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट आएगा, ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसी। कंटिजेंसी जो सेक्शन है इसका बेटा सेक्शन 42 है। इसके पहले वाले का सेक्शन था 41 एंड उसके पहले वाले का सेक्शन था एग्रीमेंट वाले का 40, और इसका जो सेक्शन है वो है आपका 42 अंडर द सेक्शन 42। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, अ फर्म इज डिसॉल्व इफ कॉन्स्टिट्यूट टू फॉर अ फिक्स्ड टर्म बाय द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनाई गई थी, वो टाइम एक्सपायर्ड हो गया तो फर्म अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। इफ़ कॉन्स्टिट्यूट टू कैरी आउट वन और मोर वेंचर्स बाय द कंपनीज कंपटीशन, देयरफॉर कंपनी क्या कर रही है कि एक से ज़्यादा वेंचर्स कैरी ऑन कर रही है और इस बिकॉज ऑफ दैट आपका काम पार्टनरशिप क्लोज हो जाएगी। बाय द डेथ ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर्स की डेथ हो गई है, एंड बाय द रिजेक्शन ऑफ अ पार्टनर्स एज एन इंसॉल्वेंट, या तो फिर पार्टनर्स क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है। इन फॉलोइंग केसेस, ये सारे केसेस में क्या होगा, कंटिजेंसी डिसोल्यूशन कहलाएगा। डिसोल्यूशन बाय नोटिस, नोटिस देकर भी हो सकता है पार्टनरशिप में। इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल द फर्म मे बी डिसॉल्व इफ एनी वन ऑफ द पार्टनर्स गिव अ नोटिस टू राइटिंग टू द अदर पार्टनर्स सिग्निफाइंग हिज इंटेंशन ऑफ द सीकिंग डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, कि कोई एक पार्टनर्स भी नोटिस देकर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक, पार्टनरशिप फर्म का। नेक्स्ट बेटा, ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट है। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, बहुत आप लोग बेटा कंफ्यूज हो सकते हो, जैसे कि कंपल्सरी डिसोल्यूशंस में
या कंटिजेंसी में, लेकिन डिसोल्यूशन बाय कोर्ट थोड़ा सा अलग है. एट द सूट ऑफ अ पार्टनर द कोर्ट में डिसॉल्व अ फर्म ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड, नेमली व्हेन अ पार्टनर बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड. पार्टनर से क्या हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, सेंस में नहीं रहता है, कोई डिसीजन नहीं ले सकता है. दैट टाइम ऑल्सो फर्म कैन से disclose the partnership firm. A partner has become permanently incapable of performing his duties as a partner. In that case also firm court can give instruction to dissolve the partnership firm. A partner is found guilty of misconduct or breach of agreement by partners. अ पार्टनर्स ट्रांसफ़र हिज राइट, अगर अपने पार्टनर्स राइट को ट्रांसफ़र करते हैं, इन दैट केस ऑल्सो डिसोल्यूशन कैन टेक प्लेस. अ पार्टनर्स ट्रांसफ़र हिज राइट एंड दैट द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन सेव एट अ लॉस, कि बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है एंड बिजनेस कांट बी कैरी आउट एंड ऑन एनी अदर ग्राउंड विच रेंडर्स इट जस्ट एंड द इक्विटेबल दैट द फर्म शुड बी डिसॉल्व. इसके अलावा कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं. इन दैट केस फर्म आपकी डिसॉल्व हो सकती है. तो बेटा ये सर्टन रीज़न थे. हो सकता है फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ो तो आपको समझ में ना आए, लेकिन करना क्या है आपको बेटा, सबसे ज़्यादा ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट है, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. इस चैप्टर से जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके जो क्वेश्चन का वेटेज होगा बेटा, देखिए वो वेटेज आपका हो सकता है जो मैं आपको बता रही हूँ 6 मार्क्स का, और या फिर आपका आ सकता है 8 मार्क्स का क्वेश्चन मिसिंग इन्फॉर्मेशन का भी आ सकता है, कंपलसरी है. इसके अलावा जो क्वेश्चन आपका बन सकता है जनरल एंट्री का 4 और 6 मार्क्स का, और 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपका आएगा ही आएगा. तो ये जो अभी हमने पॉइंट डिस्कस किए ये एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए. तो बेसिकली आप बोल सकते हो जो पार्टनरशिप का जो डिसोल्यूशन हो सकता है फर्म का, वो कौन कौन से ग्राउंड के. डिसोल्यूशन बाय फर्स्ट है आपका बाय एग्रीमेंट, एक बार वापस रिवाइज. सेकंड जो आप बोल सकते हो कौन सा पॉइंट है, वो है कंपलसरी डिसोल्यूशन. नेक्स्ट अगर आप बोलोगे नेक्स्ट डिसोल्यूशन के लिए कंपलसरी डिसोल्यूशन आपका हो गया सर्टेन कंटिजेंसी, कुछ अलग कंडीशन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसी. एंड आपका है डिसोल्यूशन बाय नोटिस. लास्ट है बाय द कोर्ट. फोर्थ एंड देन फिफ्थ. बेटा इसका जो सेक्शन है वो है 40. देन कंपलसरी जो है उसका है 41. एंड नेक्स्ट जो आपका है हैपनिंग इन सर्टेन कंटिजेंसी देन 42. देन 43. बाय कोड का सेक्शन मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म भी कर सकते हैं. सो आई विल अपडेट माई सेल्फ. तो ये आपके थोड़े से कॉजेज़ हैं, कंडीशन है. इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन पार्टनरशिप ऑफ अ फर्म, sorry, dissolution of a partnership firm can take place. Agreement by agreement, dissolution by agreement, dissolution, compulsory dissolution, happening of certain contingency, notice by any partners and by the court. ये सारे केसेस में आपका क्या हो सकता है, dissolution of a partnership firm हो सकता है. ठीक है. जो मेन एक्टिविटीज़ क्या करनी होगी इन टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जब डिसोल्यूशन होगा तो उस टाइम पर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कैरी ऑन होगी. तो बेटा पहला जो पॉइंट आपका बनता है वो सबसे पहले काम क्या करना होगा, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट. सबसे पहला जो वर्क होगा वो होगा सेटलमेंट ऑफ अकाउंट. और किसके अंतर्गत होगा ये, सेक्शन 48. क्लियर. नेक्स्ट होगा पेमेंट ऑफ फर्म डेब्ट्स एंड प्राइवेट डेब्ट. पेमेंट ऑफ फर्स्ट होगा सेटलमेंट ऑफ अकाउंट सेक्शन 48 एज वेल एज पेमेंट ऑफ फर्म्स, पेमेंट ऑफ फर्म
डेब्ट एंड प्राइवेट डेब्ट, सेक्शन 49, पेमेंट ऑफ फर्म डेब्ट एंड प्राइवेट डेब्ट, सेक्शन ऑफ 49, मेन एक्टिविटीज़ एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो ये सारे आपके काम थे बेटे। डिसोल्यूशन जब होगा तो सारे अकाउंट क्लोज होंगे, सारे के सारे अकाउंट क्लोज होंगे, तो उस टाइम पर आपको कुछ काम करने होंगे। वो कौन कौन से काम होंगे? अगर हम बात करते हैं सेटलमेंट ऑफ अकाउंट की, कुछ ऐसे अकाउंट बनाना होगा जो आप जिसके बारे में आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, जैसे कि रियलाइजेशन अकाउंट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा एंड बैलेंस शीट आपकी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल you have to transfer all the assets and liabilities into the realization account। जब डिसोल्यूशन होगा पार्टनरशिप फर्म का, तो उस टाइम पर बेटा क्या करना होगा, जितनी भी एसेट्स हैं, जो स्टेप फर्स्ट होगा, सबसे पहला जो स्टेप होगा, अगर हम बात करते हैं स्टेप फर्स्ट में transfer assets, all the assets which can be converted into the cash, transfer assets to the debit side of realization account। तो जितनी भी एसेट्स होंगी वो रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। बट कौन कौन सी, याद रखना, कौन कौन सी एसेट्स है विच कैन नॉट बी ट्रांसफर ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। फॉर एग्जांपल विच वी कांट कन्वर्ट इनटू द कैश और फिक्टिशियस एसेट्स, जैसे कि कैश एंड बैंक बैलेंस, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, फिक्टिशियस एसेट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, लोन एडवांसेस टू पार्टनर्स। तो क्या हो गया, रिमेंबर क्या क्या आपका ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा? डू नॉट ट्रांसफ़र, क्या क्या ट्रांसफ़र नहीं करना है हमें बेटा? फर्स्ट है हमारा, हमें क्या नहीं ट्रांसफ़र करना है, कैश एंड बैंक बैलेंस हमें ट्रांसफ़र नहीं करना है। नेक्स्ट में क्या नहीं करना है, डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, और हमें क्या नहीं ट्रांसफ़र करना है बेटा, जैसे कि फिक्टिशियस एसेट्स, इधर लिख लेते हैं पॉइंट थर्ड, फिक्टिशियस सॉरी मैंने फिर स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी है, कोई बात नहीं, वापस इसको राइट कर लूँगी। जैसे कि मुझे ट्रांसफ़र नहीं करना है वो बेटा क्या क्या नहीं ट्रांसफ़र करना है, फिक्टिशियस एसेट्स, FICTITIOUS, फिक्टिशियस एसेट्स में ट्रांसफ़र नहीं करनी है रियलाइजेशन में। एंड देन एक्यूमुलेटेड लॉसेस ट्रांसफ़र नहीं करना है हमें। देन लोन एंड एडवांसेस, इफ़ एनी पार्टनर्स गिवन बाय फर्म, लोन एडवांस टू पार्टनर्स। तो इतना आपको याद रखना है कि सारी की सारी एसेट्स कहाँ पर ट्रांसफ़र होंगी, डेबिट साइड ऑफ एक नया अकाउंट बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट, जहाँ पर हम एसेट्स और लायबिलिटी को रियलाइज़ करेंगे। लेकिन क्या ट्रांसफ़र नहीं होगा, कैश एंड बैंक का बैलेंस शीट, डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, क्लियर, फिक्टिशियस एसेट्स, वो एसेट्स जो कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो गया, लोन एंड एडवांसेस हो गया, एक्सेट्रा, दीज विल नॉट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर हम नेक्स्ट लेते हैं बेटा, जब हम इनको ट्रांसफ़र करेंगे तो एंट्री हमारी क्या होगी, जब हम सारी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो एंट्री हमारी होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू सेंट्री एसेट्स अकाउंट।
और बेटा एक बार हमने क्या किया, ये जब सारे एसेट्स को हमने कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट में, उसके बाद क्या होगा, इन एसेट्स को हम रियलाइज़ करेंगे। रियलाइज़ का मतलब है कि इनको सेल करेंगे, ठीक है। और जब हम सेल करेंगे तो जो हमें एक्चुअल में अमाउंट रिसीव्ड होगी उनको हम सेल करेंगे। जब उनको सेल करेंगे वो रियलाइज़ होगी तो हमें कैश प्राइस होगा, तो इंट्री क्या हो जाएगी बेटा उस टाइम पर, आइदर बैंक और कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बेटा ये जो फर्स्ट एंट्री है ये एसेट्स को ट्रांसफ़र करने की है, और ये किसकी है, ये एसेट्स को रियलाइज़ करने की है, ठीक है। अब अगर सपोज किसी पार्टनर्स ने, जब रियलाइजेशन हो रहा था उस टाइम पर किसी पार्टनर्स ने एसेट्स ले ली, तो कैश या बैंक डेबिट की बजाय क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्लियर, कैश और बैंक की बजाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा अगर किसी पार्टनर्स ने आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को लिया हुआ है, सॉरी एसेट्स को लिया हुआ है। जैसे कि आप ऐसे समझ लीजिए कि ये आपका ये रियलाइजेशन अकाउंट है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। सबसे पहले आप सारी एसेट्स बैलेंस शीट से जो लेकर आएंगे, कैश को छोड़कर, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़कर जो भी एसेट्स आएंगे तो उनको लिखेंगे टू सेंट्री एसेट्स, और जब इनको रियलाइज़ करेंगे कैश में तो लिखेंगे टू बाई बैंक। और किसी पार्टनर्स ने अगर एसेट्स ले लिए देन यू विल राइट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाई साइड बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ एनी एसेट्स टेकन बाय एनी पार्टनर्स। नेक्स्ट है आपका जो सेकेंड स्टेप होगा, ट्रांसफर ऑल एक्सटर्नल, जैसे कि इंटरनल एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ ही आपकी ट्रांसफ़र होगी, इंटरनल नहीं, ट्रांसफ़र ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ in the credit side of realization account। क्लियर, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। तो फॉर एग्जांपल जब हम क्रेडिट साइड में इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो बेटा एंट्री हमारी क्या क्या बनेगी, रियलाइजेशन के जब हम क्रेडिट, सपोज ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट है, क्लियर, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, तो बाई साइड आप लिखोगे बाई लायबिलिटीज़, ठीक है। जितनी भी लायबिलिटीज़ होंगी उनको ट्रांसफ़र आप कर दोगे। अब बेटा कौन कौन से लायबिलिटीज़ है जिनको आप ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, जैसे कि इंटरनल लायबिलिटीज़ है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, कोई आपका रिज़र्व होगा, रिज़र्व एक्सेट्रा, करेंट अकाउंट पार्टनर्स का कैपिटल एंड करेंट अकाउंट, कोई लोन है, कोई रिज़र्व है, कोई प्रॉफिट है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो नहीं लोगे, एंड लोन एडवांस्ड बाय पार्टनर। ये सारे पॉइंट है, इनको आप रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं करोगे, बाकी सारी लायबिलिटीज़ को आप रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करोगे। और बेटा रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करने के बाद ये आपको कौन सा अकाउंट, रियलाइजेशन ट्रांसफ़र करने के बाद बेटा इसका फॉर्मेट मैं आपको मेंशन कर दूंगी, भेज दूंगी, मैं इसको सेंड कर दूंगी। पहले एक बार समझ लेते हैं सारी लायबिलिटीज़, कौन कौन सी लायबिलिटीज़, इंटरनल लायबिलिटीज़ को छोड़कर सारी लायबिलिटी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। और उसके बाद आप जब इनको पेमेंट करोगे तो लिखोगे टू बैंक, अपोजिट साइड में, पहले क्रेडिट में एंड देन डेबिट में, टू बैंक एंड देन लायबिलिटीज़ पेड। तो बेटा इसकी जनरल एंट्री देख लो, जब जनरल एंट्री आप बनाओगे तो जनरल एंट्री आप किस तरीके से इसकी बनाओगे, ट्रांसफ़र करेंगे बाई साइड में तो एंट्री बनेगी आपकी सेंट्री एसेट्स, सॉरी लायबिलिटीज़ अकाउंट
डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, सेंट्रल लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। और बेटा जब हम इन लाइबिलिटीज़ का पे करोगे तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक, और किसी पार्टनर्स ने ले लिया है देन क्या हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर किसी पार्टनर्स ने किसी लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए बोल दिया है देन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सिर्फ आएगा जब वो आप उसको पे करोगे। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, ये हमारे ऑल ट्रांसफ़र ऑल दी प्रोविजंस क्रिएटेड अगेंस्ट द एसेट्स। अगर कोई ऐसा प्रोविज़न है जो एसेट्स के अगेंस्ट में क्रिएट है, जो थर्ड स्टेप है ट्रांसफ़र ऑल प्रोविज़न। बहुत सारे बिजनेस में प्रोविज़न होते हैं लेकिन उन्हीं प्रोविज़न को जो एसेट्स के अगेंस्ट में है उनको भी हम कहाँ करेंगे, ट्रांसफ़र ऑल प्रोविज़न क्रिएटेड against the assets in the credit side of realization। जैसे कि वो सारे रिजर्व जो एसेट्स के अगेंस्ट में हो उनको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, रियलाइजेशंस के क्रेडिट में। कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे बेटा, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। तो आपको ध्यान के रखना है प्रोविजंस एंड क्रेडिट अगेंस्ट दी एसेट्स विल ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन कौन से ट्रांसफ़र होंगे, फॉर एग्जांपल प्रोविज़न फॉर बैड डेबिट्स या डॉटफुल डेब्ट्स, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, ये सारे के कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, कि रियलाइजेशन के डेब्ट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बेसिकली सारा हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया है। अब इस पर से जो रिलेटेड और पॉइंट हैं हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, एंड सम जर्नल एंट्रीज।